welcome to JLN online class. Today we will discuss rest work of lesson 2nd. In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospital, laboratories for testing, ambulance service, blood banks, etc. that can provide the required care and service that patient need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. We also need the medicine and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. अब क्या होता है बेटा कि ये बीमारियां ना, इनसे बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाओं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, परीक्षण केंद्र, प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक, मरीजों को आवश्यक सेवा देखभाल कराने उपलब्ध कराने वाले सेवक, नर्स, डॉक्टर और विशेषज्ञों की जरूरत, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके, इलाज कर सके। मरीज के इलाज के लिए हमें दवाइयाँ, उपकरण चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। India has a large number of doctors, clinic, hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running public health care system. This is a system of hospital and health center run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical service science, whereby many new technologies and treatment producers and available in country. क्या होता है कि भारत में ना बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, हॉस्पिटल हैं। देश में ना पब्लिक जो स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसी चिकित्साएं और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है, और सरकार क्या करती है, अपनी जनसंख्या का एक बड़ा भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों लोगों में फैली हुई है। इस विषय पर बाद में अधिक विस्तार से हम चर्चा करेंगे, और साथ ही चिकित्सा विज्ञान में जो असाधारण जो प्रगति हुई है उसके चलते देश के इलाज और नई तकनीकी विधियां, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। However, the second column points out how poor the health situation in our countries. With all above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facility to people. This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge, and people with experience, but cannot make the necessary healthcare available to all. In this chapter, we will look at some of the reason for this. अब भाई दूसरी चीज़ क्या बताती है कि हमारे देश में ना स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है, और अच्छी बात क्या है कि सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे, और ये बड़ी अजीब स्थिति आ जाती है। जो हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसके विपरीत हो जाती हैं। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, फिर भी सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। अब इस अध्याय में हम कुछ इसके जो कारण हैं उनका पता करेंगे। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख की कहानी पढ़ते हैं। हकीम शेख वॉज मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स इन वेस्ट बंगाल. Of one evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injury. He was very serious condition, needed immediate treatment. हकीम शेख, जो कि पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति का एक सदस्य है, जो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूर होते हैं, वहाँ उसमें एक संगठन है। 1992 में क्या हुआ कि एक शाम को चलती हुई ट्रेन से गिर गया और उसके सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आई, और जिसकी वजह से उसकी हालत बड़ी नाजुक हो गई और उसे तुरंत इलाज की जरूरत हुई। He was taken to government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they didn't have spare bed. Another hospital didn't have facility or specialized doctor necessary for this treatment. In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him.
अब वो कोलकाता ना एक सरकारी हॉस्पिटल में उसे लेके जाया गया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर है भर्ती करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर ना तो सुविधाएं थी, ना इलाज के लिए जरूरी सामान था, ना विशेषज्ञ थे। ऐसे करते करते 14 घंटे बीत गए और 14 घंटे के अंदर वो 8 सरकारी हॉस्पिटल में उसे लेके जाया गया, लेकिन किसी ने भी उसको एडमिट नहीं किया। Finally, he was admitted in private hospital where he received treatment. He spent a lot of money on his treatment, angry and upset over indifferent attitude of all hospital that refused to admit him. Hakim Sheikh and PPKMS filed in a case in court. अंत में क्या हुआ? वो एक निजी हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया, उसका इलाज किया गया और उन्होंने इस इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिस हॉस्पिटल में उसे भर्ती करने से इनकार किया था, उसके जो उससे नाराज, उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर, परेशान होकर हाकिम शेख ने PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ते हैं। क्या है? द कॉस्ट ऑफ भाई जो है ना कीमत है इलाज के ना जो के लिए खर्च हो जाता है। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स वाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली। अमन's पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। क्या होता है? अमन और रंजन बड़े अच्छे दोस्त होते हैं और रंजन का परिवार होता है वो काफ़ी अमीर होता है, साधन संपन्न होता है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन? अमन, अरे कैसे हो, बड़े दिनों बाद मिले, बताओ भाई कैसे हो? आई हैव वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल। मुझे ना वायरल बुखार हो गया था और मैं हॉस्पिटल में चला गया था। ओहो मीठू, मुझे भी हो गया था। आई जस्ट गो बैक टू स्कूल ऑन मंडे। माई डैडी कम टू मी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट ए न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे जो डैडी हैं किंग्सवे के एक नए हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए मुझे लेके गए। वहाँ बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा वो देखते हैं। द बिल्डिंग लुक्ड सो पुट। आई थॉट इट वॉज 5-star होटल। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट फैसिलिटीज़। हॉस्पिटल की बिल्डिंग ना ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5-star जो होटल है, और डैडी कह रहे थे कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिलती है। Daddy had to pay 500 at reception counter itself before we even meet the doctor there. There was nice music playing and everything was really clean and shiny. फिर रिसेप्शन पे काउंटर पर डैडी ने 500 रुपये देने पड़े और डॉक्टर को दिखाने से पहले पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ साफ सुथरा जगमगा रहा था। अच्छा भाई। The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forget to feel their pain. अब डॉक्टर जो थे उसने मुझे परीक्षण कराने के लिए जो कहा था, वो वहाँ मुझे बिल्कुल दोस्तों की तरह बातें कर रही थी। और एक महिला जो जिसने मेरे ब्लड की जांच की थी, उसने मुझे बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। आफ्टर द रेस्ट रिजल्ट केम. We went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed some medicine and rest. जब सारे जो निरीक्षण थे ना, प्रशिक्षण हुए थे, जितने भी टेस्ट हुए थे, उनके नतीजे आ गए और हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजे में देखा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ वायरल हुआ है, कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। एंड हाउ यू heard द वन अबाउट बैटमैन और रियलिटी टीवी? क्या तुमने रियलिटी टीवी और बैटमैन वाला चुटकुला तो सुना होगा। एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day and the white tablets once before bedtime. That's for body hack. This one is a shape. Don't worry, it is tasty. हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी की गोली है, दिन में 3 दफ़ा लेनी है और ये सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। अच्छा जी, थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। हाँ वो कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर, मुझे अब काफ़ी अच्छा ठीक लगा। डियर स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट वर्क ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।